And what is that commission? क्या थी वो अंतिम आज्ञा? We have already read. What is that God giving commission? दुनिया में क्या बनाओ? चेले बनाओ। बताओ और चेला बनाओ और लोगों को पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। Amen. And then what is the meaning of disciple? तो चेला या शिष्य का अर्थ क्या है? चेले का अर्थ क्या होता है? जो अपने गुरु पे अपने टीचर को इमिटेट करता है। Imitate. follower of Jesus Christ. Yes. यीशु मसीह के फुटप्रिंट्स पे चलना और obey the commandment. You obey the commandment. Yes. So disciple, you all are saying right, but the disciple, the real meaning is that the student. तो चेले का अर्थ है एक शिष्य। Disciple means a student. एक चेला मतलब एक शिष्य All learner. या सीखने वाले को भी चेला कहा जाता है। So we are the student of Jesus Christ. हम यीशु मसीह के शिष्य हैं। Or we are the learning from Jesus. मतलब हम यीशु मसीह से सीखते हैं। So Jesus is our guru. तो यीशु मसीह हमारे गुरु हैं। So that you will see the real meaning of disciple means who is the learner to the guru and who is learn and practice. तो चेला वो होता है जो अपने गुरु से सीखता है और जो सीखता है उसे अपने जीवन में उतारता है। So our master is Jesus Christ. तो हमारा मालिक हमारा मास्टर यीशु मसीह है। And we are the student of Jesus. और हम यीशु के शिष्य हैं। We all say I am the student of Jesus. हाँ बोलो मैं यीशु की शिष्य या शिष्या हूँ। जोर से। मैं यीशु मसीह की शिष्या हूँ। Or I am the follower of Jesus. या मैं यीशु के पीछे फॉलो करती हूँ। So disciple means the learner or disciple means the student. तो चेला मतलब सीखने वाला या फिर शिष्य होना। Or who put into practice. या फिर जो वो गुरु कहता है करने के लिए वो सब करता Or है। who do, you already say, who do what the guru do. मतलब कि जो गुरु करता है वैसा आप सेम से उसे कॉपी करते हैं। See, the people imitate people. जो लोग दूसरों की कॉपी करते हैं Exactly. एकदम। Some people very talented imitate some. कई लोग बहुत अच्छी मिमिक्री करते हैं जो एक बंदा करता है वैसा ही कॉपी करके वैसे ही Some people exactly imitate just like me. जैसे पास्टर करती है वैसे कई लोग पास्टर की एक्टिंग उतार सकते हैं। Just like my आवाज. पास्टर की आवाज Just like the way I walk. जैसे पास्टर चलती है वैसे वो चल पाए। Just like I preach, they will preach. जैसे पास्टर प्रचार करते हैं वैसे वो प्रचार कर पाए। So that is the disciple. मतलब कि उसे चेला कहा जाता So है। Jesus said that Jesus before when he was on this earth, जब यीशु मसीह धरती पर थे he met a disciple. उन्होंने चेले बनाए। He called 12 disciples उन्होंने 12 चेलों को बुलाया। to follow him. ये कहा कि आओ मेरे पीछे हो लो। And in the Bible you will see we will never see Christian, आप बाइबल में कभी भी मसीही शब्द नहीं देखते हैं, but we will see disciple. लेकिन हम चेला शब्द देखते हैं। Amen. आमीन। You all are listening? क्या आप सब सुन रहे हैं? So in the New Testament to Old Testament you will never see Christian. तो पुराने नियम से नए नियम में अगर आप देखते हैं यीशु मसीह ने क्या बोला? चेले बनाओ, ये नहीं बोला मसीह बनाओ। So in the New Testament you will see that the disciple were always called disciple. तो नए नियम में आप देखते हैं कि यीशु मसीह के चेले कहे गए थे लोगों को। यीशु So wherever they go people say you are the disciple of Jesus जहाँ Christ. पर भी वो जाते थे लोग कहते तुम यीशु मसीह के चेले हो, Because they follow with the guru. क्यों चेले यीशु के साथ चलते And हैं whatever guru say, और जैसे गुरु कहता था they do. वो करते थे। That Jesus said to the disciple, तब यीशु मसीह ने चेलों से कहा go to the market, कि जाओ मार्केट जाओ, buy something. ये लेकर आओ। Then they come and buy. वो जाते थे लेकर And आते they थे। bring. And the guru will say, feed the 5,000 people. तो गुरु कहता था कि ठीक है 5,000 लोगों को खाना खिलाओ। And then they say, how guru? We didn't have food. तो चेलों ने कहा नहीं कैसे खिलाएंगे, पैसा तो नहीं, खाना And तो the नहीं है। small boy found out that what is that 2 fish? What is 5 that? मछली 2 रोटी। हाँ 2 रोटी और 5 रोटी। हाँ 5 रोटी 2 मछली. So they bring to Jesus. तो यीशु के पास लेकर आए। Jesus said, give them food. तो यीशु मसीह ने कहा कि जाओ उनको खाना दो। So now that what is disciple mean whatever the guru say following. तो यीशु मसीह जो कहते थे गुरु सारे चेले वही फॉलो Let करते us थे। go to Galilee. यीशु मसीह ने कहा चलो गलील चले। They follow. फॉलो They करते didn't थे। say no, I need to go to my house. ऐसा नहीं गुरु ने बोला चलो तो चेले कहते कि नहीं मुझे घर जाना है। Oh, I need to go and मछली पकड़ने. They didn't do that. वो ऐसा नहीं कहते थे। They all are some are tax collectors, some are fishermen, some are so many people that God are picking different people तो and यीशु become मसीह a ने अलग disciple. लोगों को चुना था जो अलग अलग करके व्यापार करते थे। So when they follow, जब उनके
Jesus said. जो भी यीशु कहते थे, Today we need to go to mountain. आज कहते पहाड़ पे जाना है, They follow. वो जाते थे। Today we need to go to the sea. यीशु मसीह कहते आज समुद्र में जाना है, They follow. वो जाते थे। Today we will not sleep. आज हम सोएंगे नहीं, We need to pray. प्रार्थना करनी है, They follow. वो करते थे। Or today we need to go to the Lazarus house. आज हमें लाजर के घर पे जाना है, Lazarus is dead. लाजर मार गया है, They follow. वो चलते थे। So that is the disciple. तो इसी को चेला कहा गया है। Whatever Guru say, मतलब जो गुरु कहे, who follow, वो जो करे, that is the वो disciple. चेला है। So now, तो अब if you become or you decided to follow Jesus, तो जैसे कि अगर आपने भी निर्णय लिया है कि आप यीशु के चेले बनेंगे, or you say that I believe in Jesus या आप Christ, कहते हैं मैं यीशु में विश्वास करूंगी, or you say that I am the child of God, या आप कहते हैं मैं परमेश्वर की बेटी हूँ, I didn't have any other God, I believe in Jesus. आप कहते हैं मैं किसी और प्रभु में नहीं, लेकिन मैं यीशु मसीह अकेले प्रभु को So विश्वास the करती day हूँ। that you decided, तो जिस दिन आपने निर्णय ले लिया, the day that you believe in Jesus, जिस दिन आपने यीशु में भरोसा कर लिया, that day उस दिन you become the disciple of Jesus. आप यीशु के चेले बन जाते हैं। So now that day you become the disciple of तो Jesus. उस दिन आप यीशु मसीह के चेले बन जाते हैं। So I say disciple means that day you become the student of Jesus Christ. मतलब आप यीशु के शिष्य बन जाते हैं। That day you need to and you need to follow the teaching of teacher. तो इसका मतलब जो गुरु सिखाए आपको वही शिष्य बनकर सीखना है। So now the day that you believe in Jesus, तो जिस दिन आपने यीशु में विश्वास किया, you said that now we can't see Jesus. अब जैसे आप यीशु को शरीर में तो नहीं देख Yes, पाते, 12 disciples time Jesus was there हाँ 12 चेलों के समय में तो यीशु मसीह शरीर में थे, and Jesus was live among them, यीशु साथ बैठते थे, खाते थे, चलते eat थे, among them, सारे काम and करते थे। Jesus command them, यीशु कहते थे go and buy ये food, करो जाकर, let us go that खाना side, लेकर आओ, and let us go to the mountain, let us go to the valley, let us go to the ocean. When they are in the sea, the storm comes. So see, we see in the Bible so many times with disciples and they never ever depart from the हम Guru. देखते हैं कि यीशु मसीह के चेले कभी यीशु मसीह से अलग नहीं होते, लेकिन जहाँ जहाँ यीशु मसीह जाते थे वहाँ चेले भी जाते थे। What Jesus eat, जो यीशु खाते थे, they eat. चेले भी वही खाते थे। What Jesus said, let us take bath. अगर यीशु चल सब संभाल लो, They may be taking bath. We don't know. वो नहाते होंगे। Jesus said, let us pray together. यीशु ने प्रार्थना करने के लिए जब कहा होगा, Many times we see Jesus told the disciples, sit down, I will teach. तो जैसे कि कई बार हम बाइबल पढ़ते हैं, यीशु मसीह कहते हैं चेलों से कहते हैं कि बैठो मैं तुम्हें सिखाऊंगा। Or when Jesus preached something in the crowd, या यीशु में जब भीड़ में कुछ सिखाते थे, many times they giving a proverb. बहुत बार वो अलग-अलग नीति वचन सिखाते That थे। disciple cannot able to understand. तो चेले उन नीति वचन दृष्टांतों को समझ नहीं पाते थे। Then when Jesus alone, जब यीशु मसीह अकेले होते they थे, used to come. वो आते थे। Guru, what is that? उसके गुरु ये क्या What you है? are talking about? Seed throw in the water, seed throw into the good soil, seed throw into the stone. चेले पूछते थे कि गुरु आपने वहाँ भीड़ में क्या सिखाया कि कुछ बीज अच्छी भूमि में गिरे, कुछ पेड़ नदी किनारे गिरे, कुछ पेड़ रोड के किनारे गिरे, तो क्या मतलब है? So they don't know. Then they used to come back and asking तो Jesus. जब भी वो कुछ नहीं समझ पाते थे, वो गुरु से अकेले में आके पूछते Then थे। Jesus used to give them और फिर answer. यीशु मसीह उत्तर भी देते The थे। last time I preached that Jesus said, I will come back soon. तो जैसे यीशु मसीह ने कहा कि मैं जल्दी वापस आऊंगा, Then they come back. तो जब वो What आए, is the meaning of that? तो यीशु के चेले पूछते थे इसका क्या मतलब है? Then Jesus, they come back to Jesus. तो यीशु के पास आए, When are you going to come back? तुम कब वापस आओगे? Then Jesus said, I don't know the hour. यीशु मसीह कहते मुझे नहीं पता वो Only समय, my Father knows. सिर्फ मेरे पिता ही But जानते हैं। before I come, पर मेरे आने से there पहले will be signs. कुछ साइन होगा Earthquake, fighting, rumor, everywhere. The Antichrist, how many things rumor will come. कि बहुत सारी जगह पे अलग-अलग चिन्ह होंगे, एंटी क्राइस्ट भी आएगा। So that is how the disciple and then also the guru, that how they are fellowship together, connection together. तो इस तरह से गुरु और चेलों का संबंध हुआ करता था। So now, तो अब those days they follow and people will say that, oh, these people are disciple of Jesus तो Christ. जब यीशु मसीह के चेले उनके साथ होते थे ना, चेले सब लोग कहते कि अच्छा ये जो लोग हैं यीशु के चेले हैं। So now you come to the church. तो जैसे आप चर्च आए हैं, You are believe in Jesus Christ. आपने यीशु मसीह में विश्वास Then किया। people will say, oh, you believe in Jesus. सब लोग कहेंगे अच्छा तुम यीशु में विश्वास करते They हो। will say that you are the follower of Jesus Christ. लोग आपके लिए बोलेंगे अच्छा तुम यीशु के
people are like that. तो ऐसे ही जब यीशु मसीह होते थे तो लोग भी ऐसे ही कहते थे। Whatever, they are completely different from public. तो इसका मतलब बाकी के छोटे से लोगों से अलग हुआ करते थे। Whatever Jesus do, जो भी यीशु मसीह करते थे they follow. वो करते थे। Jesus says stop, यीशु मसीह कहते रुक जाओ, they stop. वो रुक जाते थे। Jesus said let's go, यीशु कहते चलो चलो, they go. वो चले They जाते। didn't do any अपना मर्जी से नहीं करता था, लेकिन प्रभु ने कुछ करते हैं वो लोग करते हैं, प्रभु ने बताते हैं करते हैं, प्रभु ने समझाते हैं करते हैं, उनका अलावा से डिसाइपल लोग कुछ नहीं करता था। तो that means that is called disciple. तो चेला इसी को कहते हैं जो गुरु के कहने के अनुसार हर एक शब्द करे। So now, तो अब Jesus come, यीशु मसीह आए, he made disciple, उन्होंने चेले बनाए and now he died और अब फिर वो एक समय for मर our गए। sin. हमारे पापों के लिए He मर गए। rose again, वो दोबारा जिंदा हुए and he was with the disciple और वो चेलों के साथ हुए 40 days. 40 दिन। Now we have already read Matthew chapter 28 verse 19, 18 we have already read. तो जैसे हमने मत्ती 28 से पहले ही पढ़ लिया है, We have already read all of them, we all know. So Jesus about to descend into heaven. तो जैसे यीशु मसीह स्वर्ग जा रहे थे He was taking up the disciple. और जाने से पहले वो चेलों को भी उस पहाड़ पे लेकर जाते हैं। Now the 12 disciple, now 11 disciple. तो उस समय क्योंकि यहूदा इसकरियोती ने आत्महत्या कर दी थी तो 11 चेले बचे थे। So that he was took to the Mount Zion, तो यीशु मसीह अपने 11 चेलों के साथ उस पहाड़ पर लेकर जाते or हैं, Mount Olive. उस माउंट ऑलिव पर Jesus was departed. जहाँ से यीशु मसीह स्वर्ग की ओर जाते हैं। Till today there a mountain is there. आज भी वो पहाड़ है वहाँ। I see where Jesus was he departed from heaven. पास्टर के जब इज़राइल गई मैंने वहाँ पर देखा वो पहाड़ जहाँ से यीशु मसीह स्वर्ग की ओर गए। So it's called an Olive Mountain. उसको ऑलिव का पहाड़ कहा जाता है। And it's called also Mount Zion. उसको माउंट जायन भी कहा जाता So है। Mount Zion, you see the Bible, Mount Zion in the Psalm. मतलब Mount Zion means सिय्योन पर्वत। our Mount Zion, the meaning of the Mount Zion is our deliverance come from Mount Zion. मतलब कहते हैं कि हमारा छुटकारा सिय्योन पर्वत से आता है। So now Jesus was about to go. तो जैसे यीशु मसीह जाने वाले थे, Jesus giving the Great Commission. यीशु मसीह ने एक अंतिम बड़ी आज्ञा दी। This is the Great Commission. एक बड़ी आज्ञा। This is the mission. एक महान कमिशन। This is the assignment. ये असाइनमेंट है, काम है। And every follower of Jesus Christ must follow. और हर यीशु मसीह के चेले को ये आज्ञा पूरी करनी है। That before Jesus go to heaven, तो यीशु मसीह जब स्वर्ग गए उससे पहले, before he departed, जब वो गए धरती से, he didn't live like that. वो ऐसे ही धरती से Jesus didn't say, "Oh मैं मेरे पिता के पास जा रहा हूँ, बाय बाय," ऐसे नहीं कहिया, ठीक है? सब प्रभु ने हम कोई जगह जाते हैं जाना है, बाय बाय ताता, फिर मिलेंगे, हम ऐसे बोल के जाते हैं ना, प्रभु ऐसे नहीं है। So God said great commission he तो given to us परमेश्वर ने जाने से पहले एक अंतिम बड़ी आज्ञा दी until he returned back. कि जब तक वो वापस न आ जाए। So what Jesus said, क्या यीशु ने कहा? he told to the 11 disciples उन्होंने अपने 11 चेलों से कहा in verse what is that verse? Read that Matthew 28 verse 16. मत्ती 28 का 16 लिखा है। 11 disciples he take them to Galilee to the mountain which Jesus was appointed for them. See, Jesus was appointed for them. यहाँ पे लिखा है 11 चेले गलील में उस पहाड़ पर गए जिसे यीशु ने उन्हें बताया था। And they saw them. और उन्होंने उसके दर्शन पाकर, See, Jesus in English Bible says Jesus was appointed the 11 disciples. मतलब कि यीशु मसीह ने अपने 11 चेलों को बताया था कि उस पहाड़ पर जाना है। Jesus said, "Come to the mountain." कि आप उस पहाड़ पे आ जाओ। And when they come, और जब 11 चेले आए, 11 disciples they come. वो 11 चेले आए, They saw Jesus. उन्होंने यीशु को देखा, They go down and worship. वो नीचे झुक के प्रणाम किया। Then Jesus is going to fly up to heaven. अब यीशु मसीह स्वर्ग की ओर जाने ही वाले थे। So he said to the disciples, जाने से पहले उन्होंने क्या कहा? verse 17. 17 When वचन, they saw him, they worshipped him, and then but some are down. उन्होंने उसके दर्शन पाकर उसे प्रणाम किया, पर किसी को संदेह हुआ। They said, "Oh, Jesus is really going, or Jesus is really Jesus here." यीशु मसीह सच में है और ये है पहाड़ से भी जाने वाले हैं क्या? So now they were some disciples, 11 disciples, some were down. तो कुछ 11 चेलों में से कुछ लोगों को शक हो रहा था। Then now Jesus told the 18. तो 18वें वचन में यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया। See, Jesus said, "All the power, authority given my Father on heaven, on this earth." तो यीशु मसीह ने कहा कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया। My Father has given to me. मेरे पिता ने मुझे दिया है। About the heaven,
स्वर्ग का, under the banner of the earth, धरती के नीचे का, all the universe, सारे ब्रह्मांड का I have the power, मेरे पास the सामर्थ्य, authority अधिकार है my Father has given to जो me. मेरे पिता ने मुझे दिया है। So now God has given this Bible. तो परमेश्वर ने जैसे ही बाइबल दी है, So before I left Delhi, पास्टर कहे जब दिल्ली के बाहर जाने से पहले, I will give it to Preeti. जैसे मान लीजिए पास्टर दिल्ली से जा रही है तो पास्टर ने बाइबल मुझे दे दी। Preeti, I will say, my Father has given to me this book. तो पास्टर ने कि मेरे पिता ने ये बाइबल मुझे दी, So now I have given to you. तो पास्टर ने कि अब मैं तुम्हें देकर जा रही हूँ, Have it, कि इसे रखो, use it, इसका इस्तेमाल करो and do it great thing. और बड़े काम करो। Same manner, इसी तरीके से Jesus told, यीशु ने कहा my Father has given the power. कि मेरे पिता ने मुझे अधिकार दिया है, Authority. सामर्थ दिया है, Now I have given to you. और वही सामर्थ अधिकार मैं तुम्हें दिए जा रहा He हूँ। said, go into the world. आप दुनिया में जाओ, Preach the gospel. सुसमाचार बांटो। I have given you the power. मेरे पास जो अधिकार है, सामर्थ है, So, तुम्हें दे दिया है। what power? कौन सा सामर्थ? We have already read in Mark chapter 16. मरकुस 16 में पढ़ा हमने सामर्थ के बारे में Jesus said, go into the world. कि दुनिया में जाओ, Preach the gospel. सुसमाचार बांटो, Whoever believe and baptize. और जो भी विश्वास करे उसे बपतिस्मा I दो। have given the power, यीशु मसीह कह रहा है मैंने authority. और अधिकार दे दिया You है will cast out the demons. कि तुम सारे दुष्ट आत्मा को बाहर You will निकालोगे, raise the dead. तुम मरे हुए को जिंदा कर दो। People will give you poison. अगर तुम्हें कोई जहर भी खाने You को will दे दे, not die. तुम खाओगे तो मरोगे I नहीं। will be with you मैं तुम्हारे साथ रहूंगा till the ends of the age. सारी दुनिया के अंत तक भी, Until I return. जब तक मैं वापस ना आ Until जाऊं, this world has finished. जब तक ये दुनिया खत्म ना हो I जाए, am with you. मैं तुम्हारे साथ हूँ। So go. तो जाओ। See, this is the command. ये आज्ञा है। Jesus said, go. यीशु ने कहा जाओ, Make a disciple. अब तुम चेले बनाओ। Before, पहले you are a student. पहले तुम मेरे चेले थे, I was with you 3 years. मैं 3.5 साल तुम्हारा गुरु बन के रहा। 3.5 years. 3.5 साल I have teaching all the word of God. मैंने तुम्हें सारा प्रभु का वचन सिखाया। I have teaching you how to live a victorious life. मैंने तुम्हें बताया कैसे एक जीवन जीना I है, have teaching you how to live a Christian life. कैसे एक मसीही जीवन जीना है। I have revealed God. मैंने परमेश्वर को तुम्हारे सामने बता दिया। I have shown the light. मैंने तुम्हें ज्योति के बारे में बताया। Now you have learned. अब तुमने सीख लिया। Now we have the word of God. अब तुम्हारा वचन आ गया। Now I left behind you. अब मैं तुम्हें छोड़कर जा रहा I हूँ। am going to my Father. मैं पिता के पास जा रहा I हूँ। am not physically anymore. अब मैं शरीर में तुम्हें दिखाई नहीं दूंगा, But I have given you the work. लेकिन तुम्हें काम देकर जा रहा हूँ। Go जाओ into the world दुनिया में and make disciples. और चेले बनाओ। What I have teaching you. जो मैंने तुम्हें सिखाया है, Don't give yourself. अब अपने पास मत रखो। Don't put yourself. अपने पास मत रखो। Don't eat yourself. खुद ही मत खाते रहो। Don't drink yourself. खुद ही पीते मत रहो। Don't have Jesus Christ सिर्फ alone. यीशु मेरा है करके मत पकड़ के Go रखो। and give to the people. अब दुनिया को यीशु बांटना शुरू I करो। have given the power and मैंने authority. तुम्हें सामर्थ अधिकार दे दिया Nothing है। to be afraid. अब डरना नहीं है। Don't be afraid. डरना नहीं I है। am with you. मैं तुम्हारे साथ Go हूँ। and preach. जाओ दुनिया में, Tell to the people. लोगों को बताओ Jesus is the कि Lord. यीशु प्रभु He है, is King. वो राजा He है, is salvation. वो उद्धार He है, died for your वो sin. आपके पापों के लिए मर गया, He saved your life. आपके जीवन को बचाया। Only He can give you सिर्फ salvation. वो ही है जो आपको उद्धार दे Go सकता है। into the अब world. दुनिया में जाओ, Preach them. सुसमाचार सुनाओ। And I'm making you a disciple. अब मैंने तुम्हें चेला बनाया, Now you go and make another अब तुम disciple. जाके एक एक चेला बनाना शुरू करो। So Jesus gave them commission. तो यीशु मसीह ने एक आज्ञा दी। He told to the 11, उन्होंने 11 को सिखाया one person. कि हर 11 व्यक्ति में से एक I have व्यक्ति, given the power and मैंने authority. हर एक व्यक्ति को एक जैसा अधिकार My सामने दिया Father है, has given to जो you. मेरे पिता ने मुझे Now दिया। I have given to you. अब मैंने तुम्हें दिया। Everyone. हर एक व्यक्ति, Don't go ग्रुप में मत जाओ, go into the ends of the earth. इस दुनिया के अंत कोने-कोने में जाओ So, Asia, America, Europe, United States, 4 corners of the world. कि दुनिया के चारों कोनों में, चाहे वो अफ्रीका हो, अमेरिका हो, कोई भी देश हो, वहाँ जाओ। So now I left you. अब मैं तुम्हें छोड़कर जा रहा हूँ। Now you become the teacher. अब तुम अध्यापक बन गए, Let student. अब तुम अपने शिष्य बनाओ, And what they learn from you, और जब वो तुमसे कुछ सीखेंगे, they will also teach the others. वो औरों को आगे सिखाएंगे। So that is how the disciple is. इसी को कहते हैं शिष्य बनाना। So Jesus told them, go into the तो world. यीशु ने चेलों से कहा कि दुनिया में जाओ। 11 disciples 11 चेलों से कहा, reaching to all over the और वो world. 11 चेले सारे दुनिया में फैल गए। And as you reach here, और जब आप भी पहुंचते हैं, make how much you can make it, make a disciple. अब ऐसे ही जैसे उन 11 चेलों ने किया, आप भी कितने चेले बना सकते
सकते हैं? What you learn? जो आपने सीखा है, You learn about Jesus. आपने यीशु के बारे में सीख Go लिया। and give to Jesus. अब दूसरों को यीशु देना शुरू करें। Go and give to everyone. हर किसी को देना शुरू Your करें। family. आपका परिवार, What Jesus has done for you. क्या किया है परमेश्वर ने आपके लिए? Jesus has healed. यीशु ने आपको Jesus चढ़ा दिया, delivered you. छुटकारा दिया, Jesus saved you. आपको बचाया है। Jesus said go यीशु ने कहा जाओ, and tell them. अब दुनिया को यही बताओ। Jesus didn't say go and tell about yourself. यीशु ये नहीं कह रहा अपने बारे में दुनिया को बताओ Oh, I'm great. कि मैं कितनी My बढ़िया house हूँ, is very मेरा घर great. कितना बढ़िया My है, family is मेरा great. परिवार कितना My बढ़िया father है, is prime minister. मेरे पापा तो प्रधानमंत्री है। God didn't say. परमेश्वर ये नहीं God कह रहा। said go परमेश्वर कह रहा and tell है about कि Jesus. यीशु के बारे में दुनिया को बताओ He is the only God. कि वो अकेला If you परमेश्वर है। believe, अगर तुम विश्वास करोगे you will have salvation. तुम्हें उद्धार If मिलेगा। you believe, अगर तुम विश्वास you will करोगे have eternal तुम्हें life. अनंत जीवन मिलेगा। That is how God giving the commission. ये आज्ञा है जो यीशु ने आपको दी है। So he said to the 18, तो 18 I बच्चे give you all the power and authority. कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे Go, दिया गया verse है। 19. अब इसलिए तुम जाओ, Go therefore सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ and make disciples of all nations. और सारे लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। Say as this command, God said, go and make disciples all nations. परमेश्वर कह रहा है कि दुनिया में जाओ और चेला बनाओ, All nations. सारी दुनिया में। Bible didn't say that go and Manipur make disciples. परमेश्वर ये नहीं कह रहा मणिपुर के शहर में जाके ना वहाँ पर Go चेला and बनाओ। make disciples only Delhi. अच्छा दिल्ली में जाके ही चेले बना लेना, Go and make disciples only in UP. या यूपी में जाके चेले बनाओ। God didn't say. ये यहाँ पर यीशु ने Before कहा you है। go to heaven, अगर तुम स्वर्ग जाओ उससे पहले He said, उन्होंने कहा go into the world, यीशु मसीह स्वर्ग में जाने से पहले make a कहा disciple, follower of Jesus Christ. कि सब दुनिया को यीशु का चेला बनाओ। Go all जाओ। over the nation. यहाँ लिखा है सब जातियों के लोगों को। God giving the assignment. यीशु मसीह ने सबको ये आज्ञा दी है, This is your assignment. ये आपकी आज्ञा है। And He said, और यीशु ने कहा all over the world, all the nation. और सारी दुनिया में If the person you say that, oh, Jesus is the Lord. अगर आप किसी कहते हैं कि यीशु मसीह प्रभु है, So I go to anywhere. मानो पास्टर कहीं जाती है And I said, pretty Jesus is the Lord. और Believe it. पास्टर मुझे कहती है कि बता यीशु मसीह प्रभु है, विश्वास कर लो। Idol is not God. अरे मूर्तियां प्रभु नहीं होती, Jesus is the Lord. यीशु मसीह प्रभु होता है। Pretty say, oh really? और मैं कहूँगी है सच में, I want to believe. मुझे भी विश्वास करना है ऐसे प्रभु में, तो I will believe. मैं भी विश्वास करूंगी। Then I say, you say that I believe. जब आप कहते हो हाँ मैंने विश्वास किया, Then Jesus said, baptize them. तो यीशु ने कहा कि जब वो ये कह दे कि मैंने विश्वास किया है तो उसको बपतिस्मा दे दो। In the name of the Father, पिता के नाम में। I make the pretty to be a disciple. ऐसे पास्टर ने मुझे चेला बना लिया। Jesus didn't say that go and baptize in your name. तो यहाँ पर यीशु मसीह ये नहीं कह रही कि तुमने चेला बनाया तो अपने नाम में बपतिस्मा देना शुरू But go करो। and teach, go and preach. And if the person believe your teaching and believe your preaching, then baptize that person. तो यीशु मसीह कह रहे हैं कि दुनिया में जाओ, सिखाओ, प्रचार करो और जब कोई यीशु में विश्वास करे तब पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। So you should baptize in my Father, in my Son, in the Holy Spirit, these three people. इसका मतलब आपको जो बपतिस्मा देना है पिता के नाम में, यीशु मसीह पवित्र आत्मा के नाम से देना है। Anywhere that you go, तो इसका मतलब अगर आप कहीं पर भी जाएं, you preach the gospel, आप सुसमाचार or you पढ़िए, share what God has done in या your अपनी life, गवाहियों को शेयर करें, or you tell about Jesus. आप यीशु के बारे में If the बताएं, person is believed, अगर कोई व्यक्ति विश्वास कर ले, that person become the follower of Jesus Christ. तो वो व्यक्ति यीशु मसीह का चेला बन जाएगा, And that person become the disciple of Jesus. यीशु मसीह का शिष्य बन जाएगा। Jesus said, why the baptism is so important? बपतिस्मा क्यों लेना बहुत जरूरी है? See, if you say, I believe in Jesus, अगर आपने कह दिया मैंने यीशु में विश्वास कर लिया, but if you are not baptized, लेकिन बपतिस्मा नहीं लिया, people will not believe that you are the son of तो God. लोग आपको परमेश्वर की संतान नहीं गिनेंगे। Baptism is that you die in the cross with Jesus Christ and you also rose again. You dip down in the water, you rose again. So same manner Jesus died, Jesus rose again. तो आप जब बपतिस्मा लेते हैं, आप दुनिया को ये दर्शाते हैं कि जिस प्रकार से यीशु मसीह क्रूस पे गए, मरे और फिर जिंदा हो गए, इसी प्रकार से मैं भी अपने पापों में गई, मर गई और अब मैं नई हो चुकी हूँ। So Jesus said, go and if the person believe. तो अगर यीशु मसीह कहते हैं कि दुनिया में आप जाते हो, सुसमाचार बांटते हो, विश्वास Same करता है, manner what I did. तो जैसे यीशु ने किया, I died on the cross. यीशु मसीह क्रूस पे मरे, I was buried. उनको दफनाया गया, 3 days I rose और again. फिर जिंदा हो गए। So if the person believe in Jesus, ऐसे ही अगर कोई व्यक्ति यीशु में विश्वास करता है, he was baptized, he was dead in the और river, जब वो पानी में जाता है, मतलब And अपने he- पापों के साथ he जाता was है, rose again. वो जिंदा
disciple of Jesus. तो ये एक तरह से चिन्ह है कि आप यीशु के चेले बन गए हैं। So if you follow Jesus, अगर आप यीशु के पीछे चल रहे हैं, same manner what Jesus did, इसी तरीके से जो यीशु ने किया, we need to do it. आपको बपतिस्मे के द्वारा वही करके दिखाना होगा। Jesus also baptized. यीशु मसीह में बपतिस्मा हुआ। Jesus said, make a disciple. Disciple means who follow what the teacher and guru do. तो कोई भी चेला या कोई भी फॉलोअर वो करता है जो उसका गुरु करता है, So that we must do. तो वो करना है। So that is the Jesus tell them, give them तो permission. यीशु मसीह ने यही अंतिम आज्ञा आपको दी है। And then he said that, and then also after the baptism, तो बपतिस्मा देने के बाद second say, और फिर क्या करना है? teach them. यहाँ पे लिखा है उन्हें मानना सिखाओ। Go, make disciple, baptize. दुनिया में जाओ, प्रचार करो, विश्वास करें, बपतिस्मा दो। So now the second, he said teach them. और फिर लिखा है उन्हें मानना सिखाओ। What kind of teaching? क्या सिखाना है? Politician, पॉलिटिशियन कैसे बनना है ये सिखाना है? science, geography, विज्ञान history? सिखाना है, मैथ सिखाना है, साइंस सिखाना है? No. नहीं। Jesus said, go जाओ, and make disciple, शिष्य बनाओ, baptize them, बपतिस्मा दो, teach this book. बाइबल सिखाओ, Go and teach this book. ये वचन सिखाओ। I have given this. जो मैंने तुम्हें दिया, And teach them अब तुम उन्हें दे दो, and to follow this book. ताकि वो इस किताब के अनुसार चले। Genesis to Revelation. उत्पत्ति से प्रकाशित वाक्य। So when the person teach, जब कोई व्यक्ति सिखाता है, the student learn. चेला सीखता है, You cannot be forever a student. क्योंकि आप हमेशा चेले नहीं रह सकते। So today I'm teaching you. आज पास्टर आपको सिखा रही है, You are learning. आप सीख रहे हैं, You go out. अब आप बाहर जाएंगे, What you learn? आपने क्या सीखा? You need to go and teach again. उनको सिखाओ। Today I'm standing here. अभी पास्टर यहाँ खड़ी है, You are learning today. आज आप पास्टर से सीख Every रहे Sunday हैं, you are learning. हर संडे सीख रहे Every हैं, month you are learning. हर महीने सीख Every रहे day हैं। you are learning. One day you will become a teacher. एक दिन पास्टर की तरह आप भी यहाँ आके प्रचार करेंगे। So Jesus said, go and tell them, teach this book. तो यीशु मसीह ने कि जाओ दुनिया में लोगों को इस किताब के बारे में मानना सिखाओ, So that they learn, ताकि वो सीखे they will follow. और वो फॉलो करें। And then third, और तीसरी चीज, after teaching, और सिखाने के बाद he said, observe them. उन्हें देखो कि वो क्या कर रहे हैं। Verse 19. After teaching, and then also verse 20, teach them to observe all the things I have commanded you. I am with you always, even till the ends of the age. Amen. So Jesus said, verse 20, teach them and observe them to follow all my teaching. तो यहाँ पर लिखा है कि उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आगे दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूँ। So obey them. You know, teach them to observe means what? The things that you are teaching. मतलब आप जो कुछ सिखा रहे हैं, The people should follow. तो वो लोग वो कर भी रहे हैं कि नहीं, वो देखो। If they are not follow, अगर वो नहीं कर रहे, observe तो them. ध्यान दो। That's what we say with a non-believer coming. तो जैसे कोई अविश्वासी आता है, They will continue to listen to the word of वो God. वचन सुनते तो रहते They will हैं, continue to follow the वो teaching. चलना भी शुरू कर देते Then हैं, they will continue to follow to become the Christian. और वो मसीही बनने की रोड पे चलने लगते हैं। So one day you come to church, एक दिन आप चर्च आते हैं, completely you know everything. आप सब कुछ जानते हैं। Till today we have don't know anything. आज आप देख कितने साल से आप क्रिश्चियन हो गए, कितने साल से चर्च आ रहे हैं, पर फिर भी कितना कुछ नहीं जानते You हैं। learn so many things. आपको लगता है आपको बहुत कुछ आ गया, So many things we need to learn. आज भी बहुत कुछ सीखना है। So Bible said, teach them. इसलिए बाइबल कहते हैं उन्हें सिखाओ। First make disciple. पहले चेला बनाओ, Second baptism. बपतिस्मा दो, Third teaching. फिर से मानना सिखाओ, Fourth, tell them to observe and follow the teaching. और फिर उन्हें आज्ञा पर चलना सिखाओ। So what is the God telling us to follow? तो प्रभु क्या चलना सिखा रहे हैं? Don't lie, don't झूठ cheat, मत बोलो, don't नफरत worship मत करो। idol, don't believe, don't do wickedness. All these things are the teaching of तो God. ये सब परमेश्वर के वचन है, परमेश्वर का सीख है जो आपको सिखा रहे हैं। So now when you started following, तो जब इन पे चलना शुरू कर now when देते you हैं, started listening the teaching, तो जब परमेश्वर का वचन सुनना शुरू करते हैं, then we started follow His teaching. तो हम परमेश्वर के वचन पे चलना शुरू कर देते हैं। पहले हम झूठ बोलता था, प्रभु का वचन बताया था झूठ मत बोलना। पहले हम लड़ाई करता था, प्रभु वचन बताया था लड़ाई मत करना। पहले हम चोरी करता था, प्रभु का वचन बताया चोरी मत करना। तो हम सुनते सुनते उस टीचिंग को फॉलो करके सारे बुराई को निकलते। लेकिन दुनिया टीचिंग को नहीं सुनता, चर्च में नहीं आता, अब वचन को नहीं सुनता, कैसे मालूम हो जाएगा? कहाँ से मालूम हो जाएगा? मालूम नहीं है। वो लोग बुराई में है, वो लोग अंधेरा में है। तो इसके लिए प्रभु बताओ, जाओ, सिखाओ, समझाओ। तो सिखाएंगे, समझाएंगे।
जाएंगे तो मालूम हो जाएंगे, तो गंदा चीज को फेंक देंगे, अच्छा चीज को फॉलो करेंगे। इसके लिए प्रभु ने सब लोग को कमान दिया, सब लोग को बताया मैं जा रहा हूँ मेरा पिता के पास, आपके लिए मैं शक्ति दे रहा हूँ, पावर दे रहा हूँ, अथॉरिटी दे रहा हूँ, जाके इस सारे वचन सीख जाओ तो सब लोग का लाइफ में आनंद जीवन मिलेगा। सब लोग का लाइफ में क्या है, live a victorious life. तो सब लोग जयवंत जीवन जीने पाएंगे। So this is a God going giving us to all the people who believe in Jesus. तो जितने लोग यीशु में विश्वास करते हैं, परमेश्वर ने ये आज्ञा सबके लिए दी है। We have already read in the Mark, and he also said, okay, let us start again there. खोलते दोबारा से मरकुस 16, Mark 16. Mark 16 there, and then Mark 16 verse 15. 16 का 15, और उसने उनसे कहा, Jesus, I will read here. Jesus said, go into the world and preach the gospel. All here is talking about preach the gospel to every creature. तो यहाँ लिखा है तुम सारे जगत में जाकर सारे सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। But in Matthew say all the nation. मत्ती के अंदर आपने पढ़ा सारी जातियों के लोगों को बनाओ, और यहाँ लिखा है सारी सृष्टि को बनाओ। सारे सृष्टि मतलब here is सारे creature. मतलब सारी चीजों को, सारे जंतुओं को, हर किसी को, Living creature. जिसमें भी सांस है। Living creature means what? This is the non-living thing. जैसे कि इसमें सांस नहीं है, When you study जब आप कोई पढ़ते हैं, non-living thing, living thing. विज्ञान में सिखाया जाता है कि ये सांस लेने वाली चीजें, This is not alive. ये बिना सांस लेने वाली चीजें, This is already dead. ये इधर से मरी हुई है। You are alive. आप तो जिंदा है। So God said, preach the gospel all the creature. तो परमेश्वर यहाँ पे कह रहे हैं सारे जंतु, सारी सृष्टि को आप सुसमाचार सुनाएं, The universe. सारे ब्रह्मांड को, Whether the animals, whether the human beings, everyone. चाहे वो जानवर हो, चाहे पक्षी हो, कोई भी हो। But Matthew said all the nation. और मत्ती में लिखा सारी जातियों के लोगों को, And he said, I have given the power and कि मैंने authority. सारा सामर्थ अधिकार दे दिया है। And he said, all the people, and that Mark 16, that go into the world, preach the gospel all the creature, and baptize them, those who are be saved, but he does not believe will be condemned. तो 16 में लिखा है जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास नहीं करेगा वह दोषी ठहराया जाएगा। See, Jesus said, go and make disciples. यीशु ने कहा जाके चेला बनाओ, Go and teach. सिखाओ, Go and preach. प्रचार करो। If the person believe, अगर कोई व्यक्ति समझ ले, विश्वास कर ले, baptize and save, बपतिस्मा दे दो, उद्धार पाएगा। but if you teach them, लेकिन अगर आपने सिखाया, if you preach the gospel, आपने प्रचार कर दिया, Jesus said, if he didn't believe, यीशु ने कहा कि अगर वो प्रचार सुनने के बाद भी विश्वास ना करे, you are sharing the gospel to your village. आपने अपने गांव के तमाम You are sharing the gospel to your gully. अपने गली के लोगों को You बताया, are sharing your gospel to your house. अपने घर वालों को बताया, You are sharing your gospel to your office. सुसमाचार ऑफिस में सुनाया, You are sharing your gospel to your business. अपने व्यापार वाले लोगों को बताया, Jesus, you are sharing them. आपने बता दिया, You try to make a disciple. आप कोशिश कर रहे हो चेला बनाने की। Jesus said, if the person didn't believe, तो यीशु ने कहा कि अगर आप बनाने की कोशिश कर रहे हो, नहीं विश्वास करता, that person is perished. तो वह व्यक्ति तो नाश हो जाएगा। It is not your duty. ये आपका काम नहीं है। हम लोग का ड्यूटी क्या है? प्रीच करना है। हम लोग का ड्यूटी क्या है? सिखाना है। कौन सिखाना है? और प्रभु का नाम बताना है। और प्रभु ने हम लोग का उदार दिया, आजाद दिया, salvation दिया, आजादी दी। सब एक बच्चन सब लोग का लाइफ में बताना है, लेकिन विश्वास करना नहीं विश्वास करना उनका डिसीजन है। सो आपका फोर्स नहीं कर सकता। हम बताए साथ चलो, एक सॉन्ग था ना, प्रभु का घर चलो, हम बताए बाइबल से ब्लेस्ड आर दोस, मुझसे कहा चलो प्रभु के घर। बाइबल से ब्लेस्ड आर दोस who say let us go to the बाइबल में house. लिखा है धन्य वो लोग हैं जो दूसरों से कहते हैं कि चलो प्रभु के घर में चले। So you tell them believe in Jesus. आप किसे कह रहे हो? यीशु विश्वास कर लो, Jesus is God. यीशु मसीह प्रभु है। If the person say no, सब विश्वास कहते नहीं हैं करेगा, नहीं मैं तो विश्वास नहीं करता। आप पागल हैं। मेरा गुरु नानक है, मेरा गुरु क्या था? बुद्धा है, मेरा गुरु क्या है? अल्लाह है, मेरा गुरु कृष्णा है, तो वो कमजी है। तो प्रभु बताता है ऐसे वाला है तो ऐसे वाला पेरिस हो जाएगा, मर जाएगा। That is the Bible says. ये बाइबल में लिखा हुआ है। So that if the person is not believe, अगर कोई व्यक्ति विश्वास ना करे, so Mark 16 verse 16 say, the person didn't believe, he be condemned. तो यहाँ पे लिखा है कि जो विश्वास नहीं करेगा वह दोषी ठहराया जाएगा। So if the person say no, I don't want to believe in Jesus, अगर कोई व्यक्ति कहते नहीं मुझे यीशु विश्वास नहीं करना, प्रभु ने कंडेम कर दिया। कहाँ जाने का? हेल जाने के लिए। तो होगा, उन्हें डिसीजन दिया।
प्रभु का पीछे नहीं जाएंगे, प्रभु का डिसाइपल में नहीं बनेंगे, और शैतान का डिसाइपल बना है, और लूसीफर का शैतान का डिसाइपल देना उनका डिसीजन है। लेकिन हम लोग का कौन है? हम लोग का काम क्या है? हम लोग का काम में क्या है? To make other person to be a follower of Jesus. तो हमें अपनी कोशिश करनी है सामने वाले व्यक्ति को यीशु का चेला बनाने की। If the person said no, अगर कोई व्यक्ति कहते नहीं मैं विश्वास नहीं करता, God said he have condemned. तो बाइबल में लिखा है कि वो दोषी ठहराया जाएगा। But if the person follow, लेकिन अगर व्यक्ति विश्वास कर लेता है, believe, विश्वास कर लेता है, then verse 17 say, तो 17 में क्या लिखा है? and this sign will follow you. See, this sign will follow those who believe in my name. तो जो भी यीशु विश्वास करते हैं उनके जीवन में ये चिन्ह दिखाई देंगे। In my English Bible says, this sign will follow those who believe in my name. They will cast out the demon. तो यहाँ लिखा है विश्वास करने वालों में चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे। They will speak new tongue. नई नई भाषा बोलेंगे। They will take the serpents. सांपों को उठा लेंगे। And they will drink anything that deadly, and that is a poison. और यदि वे प्राणनाशक वस्तु भी पी जाएं, Or they will not harm. तो भी उनको कुछ हानि नहीं होगी। Or they will lay their hand on the sick. वो बीमारों पर हाथ रखेंगे They will recover. और वो चंगे हो जाएंगे। This is God has given to each person who believe in Jesus. तो ये परमेश्वर ने हर किसी विश्वासी के लिए कहा है। All the people who follow Jesus. जो भी यीशु के पीछे चलते हैं, God didn't say only Pastor Kamai will heal. परमेश्वर ने ये नहीं लिखा है कि अभी कलीसिया की सिर्फ पास्टर कमाई ही लोगों को चंगा कर God सकती है। didn't say that only the people performing miracles they will be healed. सिर्फ चमत्कार वो कुछ ही लोग कर सकते हैं। But Jesus said, पर यीशु ने कहा God said before he left, जाने से पहले those who believe in my name, कि विश्वास करने वालों में चिन्ह होंगे। in my name, मेरे नाम से this sign will follow. ये चीजें होंगी। You will cast out the demon. आप दुष्ट आत्मा को You निकालेंगे। will say, today all kinds of sickness come from Satan. आज सारी बीमारी शैतान से आती है। All kinds of pain come from हर Satan. तरह का दर्द शैतान से All आता the है। attack come from सारे Satan. अटैक शैतान से आते All हैं। the grief come from सारी Satan. गरीबी शैतान से All आती the है। failure come from सारी Satan. असफलताएं शैतान से So आती God हैं। said, I have given the power and परमेश्वर authority. कहते हैं मैं तुम्हें सारा सामर्थ अधिकार दे In दिया my है name. कि मेरे नाम You से will cast out the demons. कि तुम दुष्ट आत्मा को निकालोगे। What kind of demon? किस तरह की दुष्ट आत्मा? Sickness demon. बीमारी की दुष्ट Death आत्मा, demon. गरीबी की, Poverty demon. गरीबी की दुष्ट आत्मा, All kinds of demons. सारे तरह की दुष्ट आत्माएं। See, everything doing wrong in our life. हमारे जीवन में जो भी गड़बड़ जो भी गलत है, It is behind there is a spirit. इसके There is पीछे a एक devil. आत्मा है जो शैतान के द्वारा है। Every people are lying there. Behind the lie there is a spirit. तो आज जो व्यक्ति झूठ भी बोलता है उसके अंदर झूठ की आत्मा है। Behind the idol worship there is a spirit. मूर्ति पूजा के पीछे भी आत्मा है। Kalasata there is a spirit. काले जादू की भी आत्मा है। Cancer there is a spirit. कैंसर की आत्मा है। Typhoid there is a spirit. टाइफाइड की आत्मा है। When all kinds of sickness they are spirit. They are living being. सारी बीमारियां आत्माएं, इसलिए वो बीमारियां होती है, तो पैदा हम लोग होती है। लाइफ में होते हैं तो खाते हैं हम लोग बॉडी को, फ्लेश को कैसे खाते हैं? लिवर को खाते हैं, कैंसर यू नो, और अलग अलग जगह से प्रभु ने नहीं बनाया। किडनी में स्टोन है, ये कहाँ से आया? शैतान लेके आते हैं। सब प्रभु बताया था आप मेरा को विश्वास कर दिया तो मैं आपको ये शक्ति दे दे, मैं आपको इससे पावर दे दे, आप सारे शैतान का काम को निकल देंगे। So that is the power that He given to us. ये परमेश्वर ने सामर्थ हम सभी को So दिया we है। have nothing to be तो afraid. हमें डरना नहीं है। Even the Luke chapter 10 verse 19. लूका 10 के 19 में लिखा है, The Bible says, all the serpent, all the scorpion, they are under your feet. सारे सांप, सारे बिच्छू, मतलब सारे शैतान के कार्य आपके पैर के तलवे के नीचे Satan हैं। is not under upper. शैतान आपके ऊपर नहीं चढ़ सकता। Satan is under your शैतान नीचे है आपके पैर feet. You के। will crush down your feet. अपने पैरों से उसे कुचल सकते हो। That is God giving you. शैतान, परमेश्वर ने आपको उतना अधिकार दे दिया है। So that is when we call upon तो God. इसलिए जब आप परमेश्वर के नाम को पुकारते हो, Devil flew away. शैतान भाग जाता है, Sickness flew away. बीमारियां निकल जाती है, Problem flew away. परेशानियां निकल जाती है। हमको आके तक कर दिया, हम हाथ हो गया, ओ प्रभु बचाओ, तो अचानक से ठीक हो गया। और प्रभु कभी कभी दवाई भी देते हैं, ये कौन कहा दिया? प्रभु ने दिया, हम लोग को सारी चीज जरूरी था। So that is how God works. तो परमेश्वर का काम ऐसा ही है, Because God has given all the power and कि authority. परमेश्वर ने सारा सामर्थ अधिकार आपको दिया है। And you will speak new tongue. आप नई नई भाषाओं में बोलेंगे। And then also you will be what? And then also God said, I will be always with you. परमेश्वर कहता है मैं हर समय तुम्हारे साथ हूं। And even though people will put कलह, sickness, बीमारी, सारी चीज खराब डालेंगे भी आपको हार्म नहीं करेंगे। कोई आपके ऊपर काला जादू भी करेगा तो आपको कोई हानि नहीं तो हम इस चीज को डरने का जरूरी नहीं है। हम सब प्रभु का स्वर्ण की कुछ चीज में डरते हैं दुनिया में।
ओ मेरा मम्मी ने मेरे को मारेगा, चल जाएगा तो, और प्रभु का वचन बताएगा तो मेरे को सोसाइटी ने मारेगा, रिलीजन लोग ने मारेगा, हिंदू ने मारेगा। ये क्यों हम पेन होते हैं? बस God said, I have given the power and authority, nothing to be afraid. तो परमेश्वर कहते हैं मैं तुम्हें सारा सामर्थ्य अधिकार दे दिया है, तुम्हें डरना नहीं है। Amen. आमीन। And then I'm going to finish on. So this is the commission for all the believers. तो ये अंतिम आज्ञा जो यीशु मसीह ने दी वो अपने हर एक विश्वासी के लिए दी। So if you have believed in Jesus तो Christ, अगर आपने यीशु विश्वास कर लिया है, this is also for you तो ये आज्ञा आपके लिए to make disciples. कि आपको भी चेले बनाने So हैं। nothing to be afraid. तो डरना नहीं है। God has given you power, परमेश्वर को सामर्थ्य दिया है, authority, अधिकार दिया to है cast out the demons, कि आप दुष्ट आत्माओं को all निकाल kinds of सकते हैं, sickness, हर तरह की all बीमारी को kinds निकाल of सकते हैं, problem. हर तरह की प्रॉब्लम को निकाल सकते हैं, nothing will not harm you. कोई भी को नुकसान नहीं And पहुंचाएगा। another promise, और एक और वादा God said, परमेश्वर ने दिया, even though I am going, परमेश्वर ने कहा मैं जा रहा हूँ, I am in my spirit, I am बस always. फिर भी आत्मा में तुम्हारे हर समय हूँ। I am never leave you मैं alone. तुम्हें कभी नहीं छोड़ने वाला, I am never leave you alone. मैं कभी तुम्हें नहीं त्यागूंगा। I am with you. मैं तुम्हारे I साथ will protect you. मैं तुम्हें I बचाऊंगा, will secure मैं you. तुम्हें बचाऊंगा, I will bless you. मैं तुम्हें I आशीष will दूंगा, anoint you. मैं तुम्हें अभिषेक दूंगा, I will touch you. मैं तुम्हें छूऊंगा, And in my name, और मेरे you नाम से become great, तुम महान हो जाओगे, mighty, महान हो and you जाओगे, will be the head. और तुम सर बनोगे। Deuteronomy chapter 28. व्यवस्था में मेरा You will be the head. कि तुम सर बनोगे, You are going out. कि तुम्हारा बाहर You are जाना, coming in. तुम्हारे अंदर You आना, will be blessed. तुम आशीषित You will होगे, be blessed. तुम आशीषित In हो the city, शहर in में, the country, देश in में, the village. गांव में, I am with you. मैं तुम्हारे साथ हूँ। Let us turn to Deuteronomy. खोलते 28. व्यवस्था में 28। This is the promise of God. ये परमेश्वर का वादा Those है, who obey the commandment of जो God. परमेश्वर की आज्ञा पर And चलते what हैं। is the commandment? क्या आज्ञा है? Jesus said, go into the world, make a disciple, यीशु मसीह ने कि दुनिया में जाओ और सुसमाचार बांटो and observe all my command. Who obey the teaching of God. This is the blessing for those who obey. तो ये आशीष उन लोगों के लिए है जो प्रभु की आज्ञाओं को मानते हैं, Because He is with us. कि परमेश्वर हमारे साथ है, So nothing will not harm you. तो कोई तुम्हें परेशान नहीं कर पाएगा। Read the 28th verse. हम बोलते हैं व्यवस्था विवरण 28 249 पेज नंबर पुराना नियम 249 आशीष वचन। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं जो मैं आज तुझे सुनाता हूँ चौकसी से पूरी करने को चित्त लगाकर उसकी सुने तो वह तुझे पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। Amen. See, here is the commission. Here is the command. ये परमेश्वर की एक कमांड है आपके लिए, आज्ञा है। Go into the world, परमेश्वर कह रहा है दुनिया में make जाओ, a disciple, चेले बनाओ, and I have given the power and authority. मैं तुम्हें सारा सामर्थ्य Observe दिया है all my कि commandments. मेरी आज्ञाओं पर चलो। That person, वो व्यक्ति he will be the above all the nations. जो व्यक्ति परमेश्वर की सारी आज्ञाओं पर चलता है उसको परमेश्वर सब में ऊपर रखता है। The person who follow the teaching of God, वो इंसान जो परमेश्वर की आज्ञाओं पर the चलता है, person who believe in जो Jesus, यीशु विश्वास करता the है, person who walk with जो Jesus, यीशु के साथ चलता the है, person what Jesus do that जो person, यीशु करता है वैसा वो करता है, that person. वो व्यक्ति This is the blessing. उसके लिए आशीष रखा है आप I will set you high above all कि nations, मैं तुझे पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ करूंगा and you shall be upon you and overtake you, because you obey the voice of the Lord your God. कि तुम परमेश्वर अपने परमेश्वर की सारी आज्ञाओं को सुनते हो और चित्त लगाकर उसको पूरा करते And हो। verse 3. और दूसरा वचन से Blessed you will be in the city. यहाँ लिखा है फिर अपने परमेश्वर यहोवा की सुनने के कारण ये सब आशीर्वाद तुझ पर पूरे होंगे। धन्य हो तू नगर में, धन्य हो तू खेत में। So you are blessed in the country, मतलब अपने देश में आशीषित होंगे, in the city. शहर में। What city you are? कौन से शहर में आप भी हैं? आप कौन सिटी में हैं? इम्फाल सिटी में हम दिल्ली सिटी में हैं। सब दिल्ली लोग शहर कहते हैं, में। आपको आशीष देगा दिल्ली सिटी में। तो आप जिस शहर में जिस नगर में रह रहे हैं उस पे परमेश्वर आपको वास्तव में this is the promise of God. ये परमेश्वर का वादा ये है। मेरा वादा नहीं है, प्रभु का वादा है। कौन इंसान प्रभु को फॉलो करते हैं, कौन इंसान प्रभु का टीचिंग करते हैं, तो प्रभु बताता आपको सिटी, कौन सिटी है, आप दिल्ली सिटी में रहते हैं, वो आपको आशीष देगा, आपको बुराई नहीं देगा, आपको गरीब नहीं देगा। और and then another one, you चौथा will वचन, blessed in the country. कौन कंट्री आप रहता है अभी, कैसे कंट्री रहते हैं आप? अफ्रीका कंट्री में रहते हो, हम इंडिया कंट्री में रहते हैं। हम सब भारत देश में रहते तो हैं। प्रभु बताते हैं आप मेरा वचन को ओबे करेंगे तो आपको कंट्री ई दिल्ली में आपको आशीष देंगे, वो इंडिया में। हम कंट्री रहते हैं इंडिया, हम सिटी रहते हैं दिल्ली,
प्रभु की आशीष देंगे। तो परमेश्वर आपको जिस शहर और जिस देश में आप रहते हैं उसमें आशीष देंगे। Then he said that you will be anything that you do in the ground you will perform. तो यहाँ लिखा है चौथा वचन, धन्य हो तेरी संतान और तेरी भूमि की उपज। But you read all these things, okay? Many things are here. अगर आप इसको पढ़ते हैं 28वां अध्याय 1 से 14 पद तक आप पढ़ते हैं तो सारे आशीष वचन मतलब सारे आशीष उन लोगों के लिखे हैं जो परमेश्वर की सारी आज्ञाओं पर चलते हैं। The person who believes all these are blessings. जो व्यक्ति परमेश्वर की बाइबल की सारी आज्ञाओं पर चलता है उसके लिए ये वचन लिखे हुए हैं। But the person who believes, लेकिन जो विश्वास नहीं करता, verse 15, तो 15 वचन से पढ़ ले हम there is a curse following. तो उनके लिए श्राप भी लिखे हुए हैं। So go home and read. तो अगर आप 15 वचन से पढ़ेंगे ऊपर हेडिंग लिखिए आज्ञा उल्लंघन के दुष्परिणाम। So the person who make disciple, तो वो व्यक्ति जो चेले बनाता है, God command them परमेश्वर ने आज्ञा दी है and follow कि आज्ञा पर चलो। all these blessings. The ये सारे Bible. आशीष आपके लिए रखे हुए हैं। So if you are the real disciple of अगर God, आप सच में यीशु के if you चेले make हैं, another अगर disciple, आप दूसरों को भी चेला बना रहे हैं, you will receive more than what he अच्छा has. यहाँ लिखा है 14 पद तक उससे भी ज्यादा आशीष अपने Because जीवन God में। said, I am with you. क्योंकि परमेश्वर कहता है मैं तुम्हारे साथ हूँ। God is the richest. परमेश्वर तो अमीर है, God is the powerful. सामर्थी है, God is the supply. देने वाला God है, is the producer. देने वाला God है, is the maker. उपजाने वाला God है, is the healer. परमेश्वर चंगाई देने वाला है, God is everything. परमेश्वर सब कुछ है। So you are the तो disciple. अब आप चेले हैं, He is with वो you. आपके साथ है। You can do something that you can't never do. तो जो चीजें पहले नहीं कर पाते थे अब आप कर पाएंगे। So there is a God saying, if for man impossible, for God what is possible? If for man impossible, for God what? जोर से. If for man impossible, मतलब कोई जो चीजें इंसान के लिए नामुमकिन है वो परमेश्वर के साथ मुमकिन है। God said anything impossible with man. तो जो भी चीजें असंभव है इंसानों के लिए, But if I am with you, लेकिन परमेश्वर अगर आपके साथ जुड़ गया you can make वो possible. संभव हो जाएगा। Amen. See, if God is with you, अगर परमेश्वर आपके साथ है everything can make possible. तो हर असंभव चीज संभव हो जाएगी। Today you have a no house, rented house. आज आप शायद किराए के घर में रह रहे हैं, But if God is with you, प्रभु अगर आपके साथ है and the next day you can have your own अगले house. साल आपका खुद का घर हो सकता है। Today you didn't have a land. आज अपनी जमीन नहीं God है, is with you. प्रभु आपके साथ Land है। belongs to God. जी He प्रभु can के give you. प्रभु आपको दे Today you सकता didn't है। have a job. आज का नौकरी Job नहीं है, belongs to God. नौकरी प्रभु God की will है, give you. प्रभु आपको दे सकता है। That is the God, what He is giving to us. ये प्रभु ने हमारे लिए रखा है Because everything belongs to Him. कि हर एक चीज प्रभु। So when God is with you, तो जब परमेश्वर आपके साथ है nothing is not तो impossible. कोई भी चीज असंभव नहीं रह जाती, Everything can make हर चीज possible. संभव हो जाती है। Today many people performing miracle with the इंसान कुछ नहीं कर सकता, लेकिन हम प्रभु का साथ है तो आप जिंदा कभी खा सकते हैं। Because प्रभु ने आपको दिया, प्रभु आपका साथ है, तो हम नहीं ना प्रभु का पूर्ण करते हैं। That's why this is the promise that I am with you. तो परमेश्वर ने वादा किया है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो आज इतने सारे आप लोग देखते हैं कि जो चमत्कार करते हैं, चंगाइयाँ करते हैं, एक व्यक्ति कभी चमत्कार नहीं कर सकता जब तक कि उसके साथ परमेश्वर ना So हो। this is the promise and this is the commission for everyone. तो ये एक अंतिम आज्ञा जो परमेश्वर यीशु मसीह ने अपने 11 चेलों को दी, वही आज्ञा परमेश्वर ने आप सभी चेलों को भी दी है। God said, go into the world and make a disciple. यीशु मसीह ने कहा दुनिया में जाओ और सुसमाचार बांटो। So after और चेले Jesus बनाओ। left, तो यीशु मसीह गए, all the disciples, उनके जाने के बाद सारे go चेले into the world and preach the सारी gospel. दुनिया में फैल गए। India, भारत में who is coming? यीशु मसीह 11 चेलों में से कौन सा चेला भारत में आया? Thomas has come to India. तो थोमा जो चेला था वो भारत आया। God said, go into the world, परमेश्वर ने कहा दुनिया में जाओ, preach the gospel. सुसमाचार बांटो। 11 disciples, और 11 चेले they never stay home anymore. वो उसके बाद अपने घर नहीं गए। What is that? Peter didn't go back home. पतरस भी घर नहीं गया। Matthew didn't go back home to tax collector. मत्ती फिर से टैक्स कलेक्टर नहीं बना। They went and preached the gospel. वो लोग सुसमाचार बांटने के लिए निकल Now गए। they did not preach अब anymore. उन्हें डर लगना बंद हो गया And now God is with them. क्योंकि परमेश्वर उनके They साथ go है। and preach the वो gospel. सुसमाचार बांटते Cast हैं, out the demon. शैतानों को बाहर निकालते हैं, Heal the sick. बीमार को चंगा करते हैं, And preach the gospel. सुसमाचार बांटते People हैं, believe. लोग विश्वास They करते हैं, become a वो disciple. भी चेले बन जाते That हैं। is why Thomas come to India. इसलिए तो थोमा भी भारत He आया, preached the gospel. सुसमाचार बांटा Now we receive it. और अब हमने पा लिया। This is how. ऐसे This is the God. Thomas come and make disciple in India. तो थोमा ने भी तो भारत में आके चेले बनाए होंगे। He died with killed by people. उसको लोगों ने मार दिया एक
समय में। So when God's power comes, तो जब प्रभु का सामर्थ्य उस you पर are आया, not afraid to die. आप उसे मरने में डर नहीं, You will preach the gospel. आप भी सुसमाचार बांटते You हैं, will ready to die for God. आप प्रभु के लिए मरने में तैयार हो जाएंगे। Now you will never afraid for people. आपको दुनिया से You डर will never afraid जाएगा। for mistake or whatever. You will afraid only God. आप सिर्फ परमेश्वर का डर लेके घूमेंगे। So today we have Jesus in this country तो आज इस भारत में हमने यीशु को पाया है, because of Thomas. क्योंकि थोमा नहीं डरा। AD 52. 52 AD में Thomas come to Kerala and थोमा preach the था gospel. केरला में आया और सुसमाचार बांटा, And that preaching spread to the all over और वो India. सुसमाचार घूमते घूमते आज दिल्ली में Even भी though है। he died, अब वो मर भी गया, his teaching never died. उसके बाद भी उसका प्रचार नहीं मरा, The word of God never died. परमेश्वर का वचन आज भी नहीं मरा। There is a last day I told them the heaven and earth will pass away. तो परमेश्वर का वचन कहते हैं कि स्वर्ग और धरती तो टल जाएगा, We also die. हम भी एक दिन मर But जाएंगे, the word of God तो will never परमेश्वर die. का वचन कभी नहीं मरेगा। And after Thomas, और थोमा के बाद William Carey, विलियम कैरी, so many preachers वो इतने सारे प्रचारक आते They हैं, come. वो आए and preaching the और gospel. प्रचार बांटा। All those people killed by India, ये सारे लोगों को भारत के लोगों ने बुरी तरह मारा, but the gospel never लेकिन killed. सुसमाचार को नहीं मार पाए, The word of God never परमेश्वर killed. का वचन नहीं खत्म हो पाया। Today people might kill me, आज हो सकता है कि लोग पास्टर को भी मार दे, but what I giving right now, लेकिन आज पास्टर जो आपको समाचार दे रही है, सुसमाचार दे it will रही है, never die. वो कभी नहीं मरेगा। Even though I am no more, एक दिन जब पास्टर भी ना हो, but the word that I preach to you, लेकिन जो वचन वो आपको हर बार दे रही है, it will never ये die. वचन नहीं Because मरेगी, this is the word of God. क्योंकि ये परमेश्वर का वचन को आपको दे रही है। Nobody cannot kill God. कोई भी परमेश्वर के वचन को नहीं मार सकता, Nobody cannot destroy the word of God. कोई भी परमेश्वर को नहीं मार सकता। If आप फेंक देंगे, आप बाइबल को फेंक भी दो, प्रभु ने दूसरा को पकड़ देंगे. किसी न किसी को तो उठाएगा इसको, आप वो नहीं मानेंगे, आप नहीं मानोगे, प्रभु ने दूसरा को मानेंगे. कोई ना कोई तो मानेगा। So that is how the God's word is powerful. परमेश्वर का वचन इसीलिए सामर्थ्य है। So believe, तो विश्वास करें, make disciple. चेले बनाएं। Now you believe in Jesus. अब आपने यीशु में विश्वास कर लिया, Our duty, अब आपका कर्तव्य क्या है? our great commission, आपकी बड़ी आज्ञा प्रभु क्या दे रहा है? our assignment हमारा काम क्या है अब? to obey His teaching. कि प्रभु की आज्ञा पर चलना And है। to what obey? क्या आप चलना है? To make another person ये disciple आज्ञा में चलना है कि अब हमें चेले बनाने हैं, and to preach the gospel. सुसमाचार बांटना And है। I say I don't know how to preach अब gospel. आप बोलोगे मुझे प्रचार करना तो नहीं आता पास्टर के जैसा, Read Bible. तो बाइबल पढ़ो ना, Share your अपनी testimony. गवाहियां बांटनी शुरू करो। What Jesus has done. क्या in your यीशु life. ने आपके जीवनों में किया है? Just tell the name of आज Jesus. सिर्फ ये बोलो यीशु मसीह प्रभु है, मेरे जीवन में ये हुआ है। Sometimes God work miracle. प्रभु छोटे-छोटे वचनों में बड़े-बड़े चमत्कार कर सकता है। Sometimes people you just say on the way. कई बार लोग रास्ते में ऐसे ही मिल जाते हैं, You just say Jesus love you. आप सिर्फ इतना बोलो कि यीशु मसीह आपसे प्रेम करते Leave हैं that person. और छोड़ दो उस व्यक्ति को। Holy Spirit will convict that पवित्र person. आत्मा उसके अंदर से कन्विक्ट करेगी। Who is Jesus? यीशु क्या बोल के चला गया व्यक्ति? यीशु कौन है जो मुझसे प्रेम करता I है? want to know. मुझे भी पता करना The है। person will start a वो search. व्यक्ति ढूंढना शुरू करेगा, They will looking for Bible. वो बाइबल ढूंढनी They शुरू will करेगा। looking where is a church. अरे कहाँ है यीशु का है? Many चर्च people है। happen like that. ऐसे बहुत से लोगों की गवाहियां हैं। People trust. Thread फेंक देंगे तोड़ में. छोटे-छोटे कागज उसमें यीशु मसीह के बारे में एक वचन यहुन्ना 3:16 या कुछ भी लिखा होता है। I know the Dinakaran the story. वो तो पॉल दिनकरन की क्या स्टोरी है? Dinakaran the great evangelist in India. जो बहुत बड़े इवेंजलिस्ट भारत में हुए थे, How to live in Jesus. उन्होंने कैसे यीशु में विश्वास किया? He was receiving somebody throw a track in his door. ऐसे छोटे-छोटे जो पेपर होते हैं ना, ट्रैक्स बोलते हैं, तो किसी ने रोड में से पेपर फेंका हुआ था। The scripture they throw it. उसमें वचन लिखा हुआ था, वो जमीन पे पड़ा हुआ था। One day he pick up. एक दिन ये पेपर में क्या लिखा है? उसने पढ़ा, His life become changed. उसका जीवन बदल गया। He tried to search. उसे ढूंढना शुरू किया। In the back side they say the right reading address. और उस ट्रैक के पीछे, उस पेपर के पीछे एड्रेस लिखा था चर्च का। He followed that वो कह रहा address. अच्छा है, एड्रेस पे जाके पता And करो क्या लिखा है। that way he found Jesus. और उससे परमेश्वर And यीशु he को पाया। become a great और man. वो उसने आज लाखों करोड़ लोगों को प्रभु Today दिया। many great people. आज बहुत सारे महान लोग, You read the testament. आप उनकी गवाहियों को पढ़ो How they found कि Jesus. कैसे उनके जीवन में पहली बार यीशु आया। Today you receive Jesus. आज आपने यीशु को पाया है। How you found Jesus. आपने यीशु को कैसे पाया? Some people tell you go to church. किसी ने आपको बोला वो चर्च चलते हैं, Or some you come and pray and you are healed. या आपने आके चंगाई को पाया, आपने विश्वास कर लिया। Seven up. इसी तरीके से Tell to others. आपको दूसरों को भी बताना है। So Jesus said, go and make disciples. यीशु मसीह ने जाओ दुनिया में सुसमाचार बांटो, Tell them to baptize, believe. विश्वास करने के लिए बोलो, Believe and baptize. विश्वास करो, बपतिस्मा लो, And teaching the word of God. परमेश्वर का वचन सुनाओ And tell them to obey. और उन्हें बोलो परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलो, So that we can reach the gospel to all the people. ताकि ऐसे धीरे-धीरे करके हम परमेश्वर का सुसमाचार
में पहुंचा पाएंगे। This is the commandment. ये प्रभु की आज्ञा है। If you are the disciple, अगर आप यीशु के चेले हैं, make another person disciple. अब एक और चेला बनाना है। Don't be a selfish ये Christian. ना सोचे मैं अपना सोचूंगा, ऐसा मसीह ना बने। Today, many people difficult to share gospel. आज बहुत सारे लोग प्रभु का वचन जानते हैं पर बताते नहीं हैं, उनको बहुत मुश्किल होता है बताने में। One thing, they are afraid. पहली बात तो डर लगता है, Fear come. डर लगता है सबसे पहले। मैं प्रभु का बच्चा, प्रभु का यीशु मसीह के बारे में बात करेंगे तो मेरा सोसाइटी मेरे को डिनाई करेंगे, मेरे को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, मेरा परिवार करेंगे। But God said, I am not giving you the spirit of fear. तो परमेश्वर का वचन कहता है दूसरे लोगों से एक के साथ है कि प्रभु ने हमें भय की आत्मा नहीं दी है, I am giving you the spirit of boldness. परमेश्वर ने बोल्डनेस की आत्मा दी है। I am with you. प्रभु आपके साथ Why है। should you afraid? तो डरना क्यों है? Satan will say, God says, speak. परमेश्वर कह रहा है इस आदमी से बात कर। Satan said, don't speak. शैतान बोलेगा मत बोल, आपको मारेगा, मेरे को मारेगा। आपको रोक देगा, आपको घर से निकलेगा। तो हम शैतान को सुनते हैं, प्रभु बताता है, मैं आपका सारा बात करना, कर कर। शैतान का मत कर मत कर। वो लड़ाई अंदर से है। तो हम डरते हैं। कौन को सुनते हैं हम? कौन को सुनते हैं? शैतान को सुनते हैं। और कभी हम प्रभु बताता है, बात कर प्रभु का वचन, और प्रभु का बारे आपका गवाही दे। शैतान बताता है, हाँ, आप शर्म नहीं है इस चीज में बात करने में। तो अब आप शर्म लगता है, ओ मेरा गवाही देंगे तो मैं तो शर्म लगता है। तो हम शैतान को सुनते हैं। वो बताता है ऐसे के लिए, इसी के लिए मैंने आपको नहीं बुलाया। मैं आपका साथ हूँ, धन्यवाद, शर्म प्लीज मत करना, मैं आपका साथ हूँ। दूसरा को मेरा वचन बताओ, मेरा नाम बताओ, वो लोग मेरा नाम से वो लोग उधार पाएंगे, मेरा अलावा से कोई नहीं वो लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे। So that is the God commandment to each one. तो ये परमेश्वर ने आज्ञा दी है हम में से हर किसी व्यक्ति We को। all understand. आइए हम सब खड़े हो जाएं।